معروف اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری کی عبوری ضمانت منسوخ ہوگی۔ شفقت زہرا بخاری نے 1 کروڑ روپے کے جعلی چیک کے مقدمے پر عبوری ضمانت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے لی تھی۔ عبوری ضمانت کے بعد نہ عدالت پیش ہوئی نہ ہی شامل تفتیش ہوئی، جس پر ضمانت منسوخ کر دی گئی۔ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ معروف اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری کی عبوری ضمانت منسوخ ہوگی۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ غریب عوام کے لیے گھر بنانا مشکل ہو گیا۔ سریا فی ٹن 6,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تعمیرات کے شعبے میں ترقی سے بلڈنگ مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ سریا دن بدن مہنگا ہونے لگا۔ فی ٹن سریا 6,000 روپے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت فی ٹن 1,50,000 روپے پہنچ گئی۔ کاروباری حضرات کہتے ہیں کہ سریا مہنگا ہونے سے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ سریا کی قیمت جو ہے اس وقت عوام کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں کو مطلب کہ پہنچ نہیں کہ مطلب کہ اپنا گھر بنا جائے، بنا دیں انہوں نے سوچ نہیں سمجھتے، سوچ نہیں سکتے گھر بنا لیے۔ سریا کی فی کلو قیمت میں 6 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ فی من سریا 5,760 روپے سے بڑھ کر 6,000 روپے میں دستیاب ہے۔ سریے کی بڑھتی قیمتوں سے عوام بھی پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ 3 مہینے پہلے سریا 1,18,000 20,000 روپیہ سی، لیکن ہن موجودہ قیمت جڑی ہے 1.5 لاکھ روپیہ چل گئی ہے۔ ہن وپاری کی کرے، عوام کی کرے گی؟ گورنمنٹ نو چاہیے کہ سریا دے ریٹ تے کنٹرول کیتا جائے۔ سریا مہنگے ہونے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو مشکلات پیش آنے کا خدشہ بھی ہے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ ملک میں مانسون بارشوں کا آغاز سے ریمو ہیڈ ورکس پر سیلاب کا خدشہ۔ جھنگ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 11,815 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مانسون کی بارشوں کے ساتھ ہی سیلاب کا خدشہ بھی منڈلانے لگا ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سریمو ہیڈ ورکس کے مقام سے گزرنے والے دریائے جہلم اور چناب میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق جاری ہے۔ تریمو ہیڈ ورکس ذرائع کے مطابق پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے قریبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے ایکسپیکٹڈ فلڈ کے انتظامات، جو انیشیل انتظامات کیے جاتے ہیں یا جو پری فلڈ انتظامات کیے جاتے ہیں، اس پہ نہ صرف میں مطمئن ہوں بلکہ علاقے کے تمام لوگ بھی اس سے کمفرٹیبل ہیں، اور وہ انتظامات جو ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے مراسلہ جاری ہو چکا ہے اور انتظامات ہو رہے ہیں۔ ایکسین تریمو یاسر سلیم کے مطابق تمام تیاریاں مکمل ہیں، جبکہ مشیر وزیر اعلیٰ فیصل جبوانہ کا کہنا ہے کہ تریمو ہیڈ ورکس کی توسیع سے سیلابی پانی بآسانی سے گزر جائے گا۔ ریسکیو 1122 اور محکمہ لائف سٹاک نے تریمو ہیڈ ورکس سمیت دیگر مقامات پر کیمپ لگانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ سیلابی علاقوں میں رہنے والے افراد کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ مانسون کے آغاز سے دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ۔ چنیوٹ میں انتظامیہ نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھارت کی جانب سے مرالا کے مقام پر 3 لاکھ کیوسک پانی چھوڑنے پر چنیوٹ میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا، جبکہ ریسکیو 1122 کی جانب سے دریائے چناب پر ریسکیو کیمپ لگا دیا گیا ہے، جہاں ریسکیو اہلکاروں کو کشتیوں سمیت دیگر سامان مہیا کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں ملاح کے طور پر کام کرنے والے بزرگ محمد منشا کا کہنا تھا کہ 2014 میں سیلابی صورتحال سے کافی نقصان ہوا تھا۔ دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے سے 100 کے قریب دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس وقت جو پانی ہمارا ادھر سے گزر رہا ہے نا، یہ 12-13 ہزار کیوسک ہے جی، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ادھر خطرے والی بات نہیں، پیچھے سے جو پانی آ گیا تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے۔ آخری بار یہاں پہ سیلاب کی صورتحال کب پیدا ہوئی؟ 2014 میں جی، وہ سب سے زیادہ سیلاب کا پانی تھا، اور ہم نے وہ کور بھی کیا تھا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہم نے سب نے مل کر، 11 والوں نے بھی، ہم نے بھی، ہماری بھی ادھر پرائیویٹ کشتیاں، تو ہماری کشتی بھی ایک بھی خالی نہیں تھی جی۔ دریائے چناب میں 3 لاکھ سے 4 لاکھ کیوسک تک پانی آنے سے 100 سے زائد دیہات، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی اور سینکڑوں مویشی متاثر ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ممکنہ سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر دریا سے ملحقہ آبادیوں کو انخلاء کی پیشگی اطلاع دی جا چکی ہے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، چنیو۔ جھنگ میں چند ملی میٹر بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ جھنگ میں موسلادھار بارش کے اثرات متعدد گلی محلوں اور سڑکوں میں تاحال موجود ہیں۔ ٹوبا روڈ، غلہ منڈی، سول لائن، جھنگ سٹی، سیٹلائٹ ٹاؤن، گلشن کالونی، بکھر روڈ بھی تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پانی کی نکاسی نہ ہو سکی، شہری اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے سے ہی سیوریج کا پانی جمع تھا، اوپر سے بارشی پانی سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزرگاہ نہیں ہے، گزرنے کے لیے پرابلم ہے سب کو، نہ پیدل آدمی گزر سکتا ہے، نہ گاڑی والا گزر سکتا ہے، موٹر سائیکل والوں کو خاص کر پریشانی ہے، بہت زیادہ پریشانی۔ کوئی حکومتی اہلکار اس کو دیکھنے نہیں آیا، ابھی تک نہیں آیا۔ ڈی سی صاحبان سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو
برائے مہربانی اس کی ریپیئرمنٹ کریں. सड़कों, गलियों और मोहल्लों के साथ साथ सरकारी दफातर और इमारत भी पानी में डूबी हैं। तहसीलदार का दफ्तर हो या ट्रैफिक पुलिस का जिले हेडक्वार्टर, इधर भी पानी जमा है। अमले को मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ शहरी भी अजियत का शिकार है। अब ये मैंने देखा है तो मेरा गुजरना बहुत मुश्किल है। मैं इंतजामिया से मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करके इसका कोई हल करें। जंग की तो वैसे सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तकरीबन 40 साल से 60 साल से ये हमारा जो है ना सियासी हमारा कोई काम ही नहीं कर रहा है। पानी की निकासी न होने से तिजारती मराकज, कोट रोड, रेल बाजार, कटरा बेरवाला, चूड़ी बाजार में भी ताजरों को मुश्किलात का सामना है। मानसून की पहली बारिश ने ही इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहरियों का कहना है कि बर वक्त इकदाम ना किए गए तो इससे भी बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद में मामूली बारिश की वजह से वासा की तैयारियां बह गई। मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी न हो ये है झंग रोड का भट्टा स्टॉप, जहां मानसून की जुजी बारिश से गली और मोहल्ले पानी में तैरने लगे हैं। झंग रोड से मुल्हिका इलाकों में जगह जगह बारिशी पानी जमा है। बारिश और सीवरेज के बदबूदार पानी ने शहरियों को परेशान कर रखा है। राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है, जिस पर शहरी सरापा सवाल हैं। वासा वाली गाड़ियां आती हैं, वो पाइप वगैरह लगाते हैं और वो गुजर बसर करके अपना वक्त पूरा करके चले जाते हैं। ये जो 4 गटर हैं, इनको सियासी कोरोना हो चुका है। ये सियासी कोरोना का शिकार हैं। इधर उधर की लाइन खोल जाती है, लेकिन ये गटर नहीं खोल रहे। आज 28वां दिन है, जबकि वासा के मेन अफसरान वो भी आए हैं, फ़रक साहब भी आए हैं, इकरामुल्ला साहब भी आए हैं। जुमरात का उन्होंने वादा किया कि जुमरात को हम इनकी मशीन लगा के सफाई करवाएंगे। बारिशी पानी के घरों में दाखिल होने से शहरियों की घरेलू जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो चुका है। बच्चे बुजुर्ग पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। वासा हुकाम कहते हैं बतदरीज मसाइल हल कर रहे हैं। हमारी लाइन डल रही है 36 इंच की, जो बड़ा दरीना मसला था पिछले साल, वो तकरीबन 4 दफ़ा सेटल हुई थी वो लाइन। वो हमें इस दफ़ा एक MNA फ़रक हबीब साहब के पैकेज में से हमने वो लाइन डलवाई है और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो फंक्शनल हो जाएगी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई पसमानदा इलाके इन दिनों ज़ेरे आब हैं। वासा हुकाम की जानिब से बेहतरीन काम के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर देखना अब ये है कि मानसून के आने वाले दिन कैसे होते हैं और शहरियों को कैसे रिलीफ मिलता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। जंग की गला मंडी बारिशी पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी। दूसरी जानिब फेस्को की गफलत ने रही सही कसर पूरी कर दी। झंग इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस गला मंडी तबाहाली का मंजर पेश करने लगी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी गला मंडी में तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गला मंडी के ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब फेस्को हुकाम की गफलत के बायस बिजली के खंभे भी टेढ़े हो चुके हैं, जिनको दुरुस्त करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। अहले इलाका का सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब ये गला मंडी है एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी कहलाई जाती है, लेकिन इसमें काम ना होने के बराबर है। इसकी वजह यह है कि जितने भी इंटरेस्ट हैं गेट के, सब पानी की वजह से सड़क ख़राब है। सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, नालियों का कोई निज़ाम नहीं है। जब बारिश आती है तो पूरा 15 दिन 20 दिन पानी यहाँ खड़ा रहता है। मैं इस सिलसिले में चीफ से भी मिला हूँ फैसलाबाद, उन्होंने भी हमें दरख्वास्त की मार करके दिया कि फिल 4 खंबा चेंज किया जाए। यहाँ के SDO साहब हैं, वो पैसों की डिमांड करते हैं। वो कहते जी पैसे लाएँ आप, ये आपका काम है, ये महकमे का काम नहीं है खंबे ठीक करवाना। हम आला हुकाम से अपील भी करते हैं और सवाल भी करते हैं उनसे कि ये 11 kV की तारें हैं, वापडा की तारें हैं, इनका हम जिम्मेदार नहीं है, इनका महकमा जिम्मेदार है। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की तारें किसी भी वक्त जमा पानी में गिर सकती हैं, जिससे पूरा इलाके के मकीनों की जानें दांव पर लग जाएंगी। बारिश का पानी, जब बारिश आती है तो पानी बहुत ज़्यादा निकल है। सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है कि पानी हर टाइम पानी इकट्ठा रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ से ट्रक बार बार गुजरते हैं, खंबे पे लग रहे, खंबा टेढ़ा भी हो चुका है, जिसकी वजह, और 2-3 दफ़ा इसकी वजह से ट्रांसफार्मर भी सड़ चुका है और तारें बहुत नीचे हैं, जिसकी वजह से अगर एक तार भी नीचे टूट के गिर गए तो पानी में गिर गए तो काफ़ी अमवात का खतरा है। अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत खंभों को लकड़ियों से सहारा देने के लिए इकदाम किए हैं। कहते हैं मुतादिद बार फेस्को हुकाम और इंतजामिया को मसाइल बारे निशानदही की, लेकिन इकदाम नहीं किए गए। इंतज़ामिया की अदम तवज्जोही का शिकार झंग की गला मंडी इंतज़ामिया की और फेस्को की तवज्जो की मुंतज़िर है। शहरियों का कहना है कि जहां पहले ही तिजारती अमूर मुश्किलात का शिकार थे, अब जाने भी खतरे में पड़ चुकी हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। इंतजामिया की गफलत के बायस फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में रीजनल ब्लड बैंक गैर फाल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए।
जर्मन हुकूमत के तावन से 2020 में रीजनल ब्लड बैंक की तामीर का काम शुरू हुआ, जिसने 6 माह में मुकम्मल होना था, मगर ताहाल ब्लड बैंक फाल नहीं हो सका। मंसूबे के तहत 5000 अफराद ने एक ही वक्त में मुस्तफीद होना था। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि कोरोना वबा के सबब मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। अमला भर्ती कर लिया है, सिर्फ मशीनरी खरीदना बाकी है। जल्द रीजनल ब्लड बैंक फाल हो जाएगा। पाकिस्तान और जर्मन हुकूमत के इश्तराक से ये रीजनल ब्लड सेंटर यहाँ पे मार्ज़े वजूद में आया है। आप ठीक कह रहे हैं कि ये ज़रा तख़ीर का शिकार हो गया। उसकी वजह ये है कि पीछे कोविड की सूरत हाल जो है ना, इसने इसको बहुत इसमें तख़ीर कर दी। आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त काम ज़्यादा कोविड का था और हमारी सारी तवज्जो कोविड पे थी, जिसकी वजह से ये तख़ीर का शिकार हो गया। मंसूबे की तकमील से थैलेसीमिया और ट्रैफिक हादसा समेत दीगर अफराद खून के एहतियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके अलावा खून के एहतियात जमा करने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। बहुत से लोगों के लिए, यानी तकरीबन 5000 लोगों के लिए एक वक्त में ब्लड की का जो है डोनेशन का वहाँ पे इस वक्त सारा मुहैया होगा, इसका एहतमाम होगा। और ये क्योंकि हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके ज़ेर इंतज़ाम होगा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि थैलासीमिया के मरीज़ और दूसरे जो एक्सीडेंट के मरीज़ हैं उनके लिए ब्लड जो है वो मुहैया हो। रीजनल ब्लड बैंक का निज़ाम फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया देखेगी। रीजनल ब्लड बैंक जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जिससे फैसलाबाद समेत दीगर अजला के अवाम मुस्तफीद हो सकेंगे। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टर इकरार अहमद खान की अपील मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल फुल बेंच ने डॉक्टर इकरार अहमद खान की अपील मंजूर कर ली। अदालत उज़्मा ने अपना महफूज किया गया फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया गया। केस के हकायक के मुताबिक वीसी ज़राई यूनिवर्सिटी की तकर्री के लिए कायम सर्च कमेटी ने डॉक्टर इकरार अहमद खान को सबसे ज्यादा नंबर दिए, मगर हुकूमत ने तीसरे नंबर पर आने वाले डॉक्टर अशरफ को वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर इकरार अहमद खान ने तकर्री को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने डॉक्टर अशरफ की तकर्री गैर कानूनी करार देकर मेरिट लिस्ट में टॉप पर आने वाले को वीसी लगाने का हुक्म दे दिया। यूं डॉक्टर इकरार अहमद खान वीसी बन गए, मगर डिवीजन बेंच ने डॉक्टर अशरफ की अपील पर उनकी तकर्री को कानूनी करार दे दिया, जिसके खिलाफ डॉक्टर इकरार अहमद खान ने अदालत उज़्मा के एक फैसले को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर इकरार अहमद की अपील की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर अशरफ को ओहदे से हटा दिया और फैसला महफूज कर लिया। मंगल के रोज फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर इकरार अहमद खान की अपील मंजूर कर ली। यूं वो तीसरी बार वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी बन गए, अगरचे उन्हें इंसाफ के हसूल के लिए बहुत तवील जंग लड़ना पड़ी। ज़राई यूनिवर्सिटी कई साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर न होने के बायस मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रही। तवक्को है कि अब यूनिवर्सिटी में बेहतरी के नए दौर का आगाज होगा। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। पंजाब में आड़तियों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां, मुसाबकती कमीशन ने 4000 आड़तियों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मुसाबकती कमीशन ने पंजाब में आड़तियों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब में दर्जनों आड़ती कई गुना मुनाफा कमाने में मुलव्वस हैं। बेशतर आड़ती गजाई इजनास की जखीरा अंदोजी में मुलव्वस हैं। कमीशन एजेंट्स और आड़ती अशिया की तलब और रसद को कंट्रोल करने में भी मुलव्वस हैं। वजारत खजाना ने आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। मुसाबकती कमीशन को आड़तियों का किरदार खत्म करने के लिए मॉडल तैयार करने की हिदायत कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार देने की सिफारिश की गई है। लीगी एमएनए अली गौहर बलोच की एंटी करप्शन में पेशी का मामला एंटी करप्शन ने 17 जुलाई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने लीगी रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच को जायदाद की तफसीलात के हमरा तलब किया था। ताहम एडवोकेट इम्तियाज अहमद गौहर अली बलोच के वकील की हैसियत से पेश हुए और इम्तियाज अहमद का कहना था कि अली गौहर बलोच से एमएनए बनने से कबल और वरासती प्रॉपर्टी की तफसीलात मांगी गई हैं। चिन्योट में मवेशी मंडियां सज गई। मंडियों में रवायती गहमा गहमी शुरू न हो सकी। जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी।
ईद कुर्बान में जो दिन कम होते जा रहे हैं, मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। चिन्योट के फैसलाबाद रोड पर लगाई गई मवेशी मंडी में दूर दराज से व्यापारी हजरात अपने माल मवेशी लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी में तरह तरह के खूबसूरत जानवर लाए जा रहे हैं। एक खूबसूरत बछड़ा जिसका नाम मालिक ने अथरा बाबू रखा हुआ है। अथरा बाबू लोगों की निगाह का मरकज बना रहा। मालिक का कहना था कि इसकी कीमत 2,60,000 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन अभी गाहक कम होने की वजह से मुनासिब कीमत नहीं लग रही। ਇਸ ਦਾ ਜੀ 2,60,000 ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਣਾ? ਫਾਈਨਲ ਜੀ ਮੁੜ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਖਲਾ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ 2,60 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? 2,60 ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ 2,30 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਤਨੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਊ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ। दूसरी जानिब मंडी में अभी तक इंतजामिया की जानिब से इंतजामात ताहाल पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान हैं। ईद कुर्बान में अभी एक हफ्ते से जायद का वक्त रहने की वजह से मवेशी मंडियों में रवायती गहमा गहमी अभी तक शुरू नहीं हो सकी। लोगों की कोशिश यही है कि ईद के आखिरी दिनों में कुर्बानी का जानवर खरीदा जाए। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, चिन्योट। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों का मेला सज गया। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवरों का मेला सज गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। नया मुआना मवेशी मंडी में मुख्तलिफ रंग और नस्ल के जानवरों के मुख्तलिफ दाम लगाए जाने लगे। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। महंगाई के इस दौर में कुर्बानी के लिए जानवर लेना भी मुश्किल हो गया है। इस दफा जो है ना रेट इनके वो बहुत ज्यादा है पिछली दफा की निस्बत। तो पिछली दफ़ा जो रेट था इनका मार्केट में जो चल रहा था वो बजट में भी था हमारे, तो हमने परचेज़ भी कर लिया था। इस दफ़ा बकरों का ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रेट है। बैलों का तो आसमान को छू गया ना रेट। हम बड़ा जानवर लेने आए थे, पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो इसलिए हमारी बजट में के अंडर में नहीं आया, तो हमने फिर ना छोटा जानवर यानी कि ले लिया। व्यापारियों का कहना है कि सारा साल जानवरों की देखभाल करते हैं और देसी खुराक से जानवरों को पालते हैं। खरीदार मुनासिब दाम नहीं लगा रहे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। वंडा आप एग्जांपल लें कि वंडा लास्ट ईयर 1200 रुपये का 40 केजी था, अब 2200 रुपये का 40 केजी हो गया। ठीक है ना। इसी तरह फीड, टोटली फीड, हर चीज़ महंगी होगी, उस लिहाज से कैटल्स भी महंगे हो गए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब आल कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी कौसर खान ने नया अमवाना मवेशी मंडी का दौरा किया। उन्होंने लाइव स्टॉक की जानिब से कायम करदा हिफाजती इक़दामात को भी सराहा।